متحدہ قومی موومنٹ کے تحت ہونے والے خواتین کے جلسے کی سیکیورٹی کے تمام تر اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی اختر گوڑ جانے کے مطابق شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور ریلیوں پر بھی پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی نعیم بروکا کے مطابق ایم کیو ایم کے تحت ہونے والے جلسے گاہ کی سیکیورٹی پر 200 خواتین اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جبکہ جلسے گاہ کے اندر اور اطراف میں 800 سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے خواتین جلسے کی ایس ایس پی خادم رند سر انجام دیں گے۔ اس وقت جلسہ گاہ کے موجود ہیں ہماری ساتھی اینکر صدف عبدالجبار، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ صدف کہے گا کہ آپ ہمیں وہاں سے کیا اپ ڈیٹ کریں گی، کیونکہ رافع نے بتایا کہ خواتین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے مہندی اور چوڑیوں کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اینی، میں مزید ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما رافع کمیٹی کے ممبر مصطفیٰ کمال صاحب، سابق سٹی ناظم بھی رہ چکے ہیں اور اب سینیٹر بننے بھی جا رہے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب سے ہم اس جلسے سے متعلق ہی مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب، کیا کہیے گا آج کا یہ بڑا جلسہ، بڑی ہم نے تیاریاں دیکھی ہیں، تو بیسکلی کیا پیغام اس جلسے کے تحت ایم کیو ایم دینا چاہتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ اور قائد طریق الطاف بھائی کے ساتھ ایک مڈل کلاس، ایک لوور مڈل کلاس اور ایک پاکستان کے لوگوں کا کیا والہانہ لگاؤ ہے، اور اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت، ایک ماں، بہن، بیٹی جب گھر سے نکل کر آتی ہے تو اس کو اپنے گھر کی پوری مینجمنٹ کر کے اس کے بعد نکلنا پڑتا ہے، اینڈ دیٹ از لاٹس آف کمٹمنٹ از ریکوائرڈ نا، کہ مرد کا نکل کر آنا تو ایک عام سی بات ہے، لیکن کسی خاتون کا گھر سے نکل کر آنا کسی جلسے میں، کسی پولیٹیکل پارٹیز میں، وہ آج تک پاکستان میں اس لیول پہ ہوا نہیں ہے۔ 200-400 خواتین لوگوں کے جلسوں میں آتی ہیں، ہم صرف اتنا بڑا پنڈال، ہم صرف لاکھوں خواتین سے یہ بھرنے جا رہے ہیں، اور مائنڈ یو کہ ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس ہیں ہمارے یونٹس کی، سیکٹرز کی، وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی بسز نہیں ہیں کہ ہم جو خواتین آنا چاہتی ہیں سب کو لے آئیں۔ ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کراچی میں کہ ہم جو خواتین آنا چاہ رہی ہیں ایم کیو ایم میں ہم سب کو یہاں پر لے آئیں، تو اس کی بہت بڑی تعداد لوگ جو ہے وہ گھروں پہ خواتین بیٹھ کر دیکھ رہی ہوں گی، لیکن جو بھی انشاءاللہ تعالی یہ پنڈال بھرے گا، یہاں سے لے کر ہم نے نشتر پارک تک پنڈال لگا رکھا ہے سارا، اور یہ پورے نمائش سے لے کر اور لیفٹ رائٹ کے سارے ایریا آپ کو یہاں پر عورتیں ہی عورتیں نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ دیٹس گونا بی اے یونیک ایونٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان۔ آج کے خواتین کے جلسے سے الطاف بھائی جو بات کریں گے ڈیفینیٹلی اس سے آگے کے خواتین کے رول جو ہے پاکستان میں جو خواتین کا رول ہے اس میں ایک بہت بڑا ایک پریکٹیکل ایک آپ چینج دیکھیں گے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے مصطفیٰ کمال صاحب، اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا جلسہ ہے، اپنی نوعیت کا ایک پہلا جلسہ ہوگا، کیونکہ پاکستان میں اب تک خواتین کی اتنی بڑی تعداد کتنا ایکسپیکٹڈ ہے؟ 5 لاکھ یا پھر اس سے کم؟ لاکھوں میں، اینڈ I'm telling you کہ انشاءاللہ تعالی دنیا جو ہے وہ ان کو ایک بڑا پلیزنٹ سرپرائز ملنے والا ہے، اور ہمیں بھی جو ہمیں جو انفارمیشنز ہیں جو آ رہی ہیں، ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمارے بھی سارے ایسٹیمیٹ جو ہیں وہ سب چیزیں، سارا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے، اور ہمیں بھی خواتین جو کمٹمنٹ، آپ دیکھیں کل رات پرسوں یہاں پر جلسہ تو آج ہے، اور اگر کل رات کی فوٹیجز آپ نکال کر دیکھیں گے تو یہ پورا گراؤنڈ فیملی سے جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، نوبڈی کال دیم، کسی نے ان کو بلایا نہیں۔ یہ الطاف بھائی سے ان کی کمٹمنٹ، ایک عام مڈل کلاس گھر کی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے کہ آج بھی انشاءاللہ تعالی اور آئندہ آنے والے دنوں میں اگلی جنریشن کے لیے الطاف بھائی کو پاکستان کے مظلوم مڈل کلاس لوگ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور اپنے سارے اس پاکستان میں رونما ہونے والے مسائل کا حل اگر وہ کسی کو سمجھتے ہیں تو وہ الطاف بھائی کو سمجھتے ہیں، ایم کیو ایم کو سمجھتے ہیں، اور اسی کا وہ جیسچر وہ دکھا رہے ہیں سارے لوگ آ کر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ آج کا جو جلسہ ہوگا وہ تاریخ رقم کرے گا، اور جیسے کہ اینی آپ بھی مجھ سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ کیا یہاں پر انتظامات ہیں، تو جب ہم نے بات کی ایم کیو ایم کے ہی مرکزی رہنما سے تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انتظامات کیے۔ اگر آپ میرے پیچھے ویو دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت تک ابھی جلسہ گاہ خالی ہے، اور خواتین جن کے لیے آج یہ جلسہ رکھا گیا ہے ان کا آنا ابھی باقی ہے۔ 3 بجے تک جلسہ گاہ میں ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی، یہاں پر خواتین آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو میں کچھ ذرا سے انتظامات یہ دکھاؤں کہ کافی زیادہ تعداد میں یہاں پر کرسیاں رکھی گئی ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کرسیاں رکھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی مزار قائد پر بہت سارے جلسے ہو چکے ہیں، اسٹارٹ ہوا تھا عمران خان صاحب کے جلسے سے جس میں 17,000 کرسیاں تھیں، پھر جناب جمعیت علماء اسلام کی جانب سے جلسہ کیا گیا جس میں 12,000 کرسیوں کا دعویٰ کیا گیا، اسی طریقے سے 27,000 کرسیوں کا دعویٰ کیا گیا، دفاعی کونسل پاکستان نے بھی جلسہ کیا تھا اور 12,000 کرسیوں کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آج یہاں پر 1.25 لاکھ کرسیاں ہیں اور 3 بڑی بڑی اسکرین نصب کی گئی ہے
एक तो पंडाल के अंदर नस्ब की गई है और एक पंडाल के बाहर, यानी जो रूट है जहाँ से इन खवातीन को इस जलसे में आना है वहाँ पर भी बड़े बड़े स्क्रीन नस्ब किए गए हैं और बाकायदा यहाँ पर बहुत वेल ऑर्गेनाइज हम देख रहे हैं तमाम तरीका कार। जी यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत कराची में मज़ार कायद से मुल्हक ग्राउंड में आज से पहर खवातीन का जलसा हो रहा है। जलसे का उन्वान है बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान। जलसे से MQM के कायद अल्ताफ हुसैन भी खिताब करेंगे। बाकी कायद आज़म में इस वक्त मौजूद हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान खान। ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा, कितने लोग इस वक्त ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और कौन कौन सी आला शख्सियात आज खिताब करेंगी? जी बिल्कुल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से बाख्तियार औरत और मजबूत पाकिस्तान के उन्वान से होने वाले जलसे की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डिप्टी कन्वीनर अनीस अहमद खानी और इसके अलावा राब्ता कमेटी के दीगर अरकान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा शहर में दीगर जो इन्होंने इस्तकबालिया कैंप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से बनाया गया, वहाँ से तकरीबन 2 बजे के बाद से खवातीन की रैलियाँ यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। अभी हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सैयद मुस्तफा कमाल मौजूद है। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बाख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान का जो उन्वान है, ये कराची में जो होने वाला जलसा है, ये पाकिस्तान में इसका खवातीन पे क्या मैसेज पहुंचेगा, बताइए। MQM ये बताना चाह रही है कि MQM के साथ फर्द नहीं बल्कि पूरे खानदान शामिल हैं। अल्ताफ भाई के साथ फर्द नहीं, पूरे खानदानों की कमिटमेंट्स हैं और इस मुल्क का 98% गरीब, मजलूम, मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा नौजवान और ये रूलिंग एलिट्स के अलावा जो लोग हैं, ये हमारे लिए खानदान के मानंद हैं। और अल्ताफ भाई ने जो आज ये कॉल दी है और जो खवातीन का जितना बड़ा ये इज्तिमा होने जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख का एक यूनिक इवेंट है। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तारीख में खवातीन के रोल के हवाले से ये एक ट्रेंड सेटर होगा और ये पाकिस्तान यहाँ MQM ये बताना चाह रही है कि ये 55% जो तादाद है, पॉपुलेशन है खवातीन की मुल्क में, उसको बजाय इसके कि घरों में बैठाकर बल्कि मुल्क की एक्टिव पॉलिटिक्स में उसको जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। साहब, कितने लोग यहाँ पर खवातीन, कितनी खवातीन इस जलसा गाह में आएंगी? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क्या दावा है? देखिए, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं बसेस की, जो हमारे यूनिट से, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप से, वो तो हम अपनी डेफिनेटली हमारे पास फाइनेंशियल इतना पैसा नहीं है कि हम सब की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, तो हम तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरे नहीं कर सकते और नहीं कर सके। हमारे पास कराची में इतनी बड़ी कोई जगह नहीं है कि जो खातून भी आना चाहती हैं उसको हम लाकर उस ग्राउंड में जमा कर लें। ये सारा कुछ, ये पूरा एरिया ये उन लाखों खवातीन से भरेगा जो कि उससे बहुत बड़ी तादाद वो है जो कि आना चाहते थे और वो नहीं आ सकेंगे, इसलिए कि ना तो इतनी बड़ी जगह, ना हमारे पास ट्रांसपोर्ट का निजाम है। तो लाखों की तादाद में यहां से लेकर निश्तर पार्क तक, निश्तर पार्क में कैंप्स लगे हुए, निश्तर पार्क में वहां पर हमने उसको पंडाल में कन्वर्ट किया है, फिर हमने स्क्रीन यहाँ बाहर लगवाई हैं, फिर नुमाइश चौरंगी के ऊपर सारी स्क्रीनें लगी हुई। तो ये पंडाल तो इटसेल्फ जो है वो कुछ भी नहीं है, इसकी लेफ्ट राइट की सड़कें और ये पूरा एरिया, सराउंडिंग एरिया जो भरा होगा। अच्छा कमाल साहब, ये बताएं कि कराची की जो खवातीन है उनको तो फिर भी किसी हद तक हकूक मिलते हैं, मगर गांव देहात की जो खवातीन है उनको वो हकूक नहीं मिल पाते हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? ये तो शहर की जो खवातीन जलसे में आएंगी। नहीं, हम जो है वो अल्ताफ भाई ने तो हमेशा जो है वो कारोकारी के खिलाफ और तमाम ये जो रसूमात हैं कबाइली किस्म की फरसूदा, उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। अल्ताफ भाई ने खातून के ऊपर जो फ्लॉगिंग हुई थी, जो कोड़े बरसाए गए थे सवात के ऊपर, तो MQM वो वाहिद जमात है जिसने 24 घंटे के नोटिस पे यहाँ पर खवातीन का सबसे बड़ा इज्तिमा किया था यहाँ पर। तो हमारी कोई MQM की अल्ताफ की बाउंड्रीज कोई कराची स्पेसिफिक या हैदराबाद स्पेसिफिक नहीं है, हम तो पूरे पाकिस्तान में इस रीजन में खवातीन की एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। हमारे रैंक्स एंड फाइल में खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, हमारे MPAs में, MNAs में, हमारे पास सेनेटर्स में, हमारे पास जो राब्ता कमेटी की जो लीडरशिप है राब्ता कमेटी में, उसमें खवातीन मौजूद है। तो MQM में ने तो हमेशा से फ्रॉम द डे वन अल्ताफ भाई ने खवातीन की एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत दी है और खातून, और ये पाकिस्तान में हम ये भी बताना चाहते हैं कि खवातीन के हुकूक के साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि MQM और अल्ताफ भाई के साथ
एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास और एक पाकिस्तान के खानदानों की कमिटमेंट क्या है। एक मर्द तो जो है वो निकलकर बाहर से आप उसको लाकर बिठा सकते हैं यहाँ पर, वो चलते फिरते तफरी करने भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन किसी खातून का किसी घर से निकलकर आना ये एक बहुत बड़ी, उसको पूरी मैनेजमेंट करनी पड़ती है अपने घर में। उसके बाद जो है वो घर से निकलकर आकर किसी लीडर के जलसे को सुनेंगे, और वो लीडर हमारे यहाँ तो जो है वो मैं इसको बोलना नहीं चाह रहा, खवातीन को तो चंद 100 लोग खवातीन लेकर आ पाते हैं, बड़े बड़े लीडरान भी। हम ये लाखों का मजमा सिर्फ खवातीन का अल्ताफ भाई करने जा रहे हैं। दैट शोज कि एक औरत का कमिटमेंट, एक खानदान का कमिटमेंट जो है वो क्या है अल्ताफ भाई के साथ और एमकेएम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबका सिटी नाजिम सैयद मुस्तफा कमाल। इनका ये कहना था कि ये जो जलसा गाह है ये खवातीन से भर जाएगा। मगर इसके अलावा ये भी बता दूं कि बाहर जो ट्रैफिक का निजाम है उसको एपीएमएसओ की जानिब से कंट्रोल करने के लिए तैनात किए गए तकरीबन 800 पुलिस एहलकारों को जलसा गाह में सिक्योरिटी के हालात के लिए तैनात किया, जिसमें से 200 खवातीन पुलिस एहलकार भी हैं और उसके साथ रेंजर्स पुलिस एहलकार। बहुत शुक्रिया इमरान खान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। एमक्यूएम के तहत मुनक्किद किए जाने वाले जलसे बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान आज मुनक्किद किया जा रहा है। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस वक्त जलसागाह की क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ 1 कुरतुलैन हाशमी। कुरतुलैन हाशमी, बताइएगा 12 बज चुके हैं, 3 बजे का टाइम मुख्तस किया गया था कि जलसे का बाकायदा आगाज 3 बजे किया जाएगा। 12 बज चुके हैं, बताइएगा कि कारकुनों और आवाम की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल सलमान, 19 फरवरी का आज ये दिन है। बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान के उन्वान से आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की खवातीन यहाँ बागे जिरा ग्राउंड में आज जलसा अपना मुनक्किद कर रही हैं। अवाम और कारकुनान को यहाँ पे 3 बजे का टाइम दिया गया है। अलबत्ता यहाँ पर एमकेएम के रहनुमाओं का ये कहना है कि 2 बजे तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो रैलियां और काफिलों की शक्ल में खवातीन यहाँ जलसा गाह में आ रही हैं, उनको 2 बजे के बाद ही इजाजत दी जाएगी यहाँ जलसा गाह में आने की। अलबत्ता सलमान, मैं आपको यहाँ पर ये बताती चलूँ की एमकेएम की राब्ता कमेटी के अरकान और एमकेएम के जो दीगर जो मरकजी रहनुमा है वो इस टाइम जलसा गाह में पहुंच चुके हैं और वो इस टाइम वो जलसा गाह में हद के इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पर अभी भी स्टेज की जो तैयारी है वो जारी है। कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से उनका ये कहना है कि स्टेज पे आखिरी लम्हात पे कुछ तब्दीली की गई थी, ताहम अब स्टेज का जो बैकड्रॉप है उसको बनाया अभी जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको सूरत हाल ये बताती चलूँ कि जलसा गाह में जो है तकरीबन 1 लाख से ज्यादा एमकेएम के रहनुमाओं का दावा है कि यहाँ पे कुर्सियां लगाई गई है और उनका यहाँ पर ये भी कहना है जो कुर्सियां है शहर के मुख्तलिफ इलाकों और दीगर जो इलाके हैं वहाँ से मंगवाई गई है। सलमान, हमारे साथ इस टाइम मौजूद है एमकेएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब। हम इनसे भी बात करते हैं और हम इनसे जानते हैं कि बाइख्तियार औरत मजबूत पाकिस्तान। कमाल भाई, क्या कहेंगे आपने के बारे में? बोलिए, आई थिंक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और एक यूनिक प्रोग्राम होने जा रहा है, जहां पर इतने बड़े ग्राउंड में और खवातीन को मोबिलाइज करना, ये सिर्फ एमकेएम का और अल्ताफ भाई का ही जो है वो ये वतीरा है और उनका ही जो है वो ये उनको ही क्रेडिट जाता है सारा। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो मुल्क में एक तो खवातीन जो कि हमारी ज्यादातर जो है वो 55% है इस मुल्क का, लेकिन ज्यादातर उनके दिन और औकात जो है वो घर और तमाम चीजों में जो है वो उनकी खिदमत में, लोगों की खिदमत, मर्दों की खिदमत में जो है वो गुजर जाया करते हैं। उनको पहली दफा इतनी बड़ी तादाद में मोबिलाइज कर रही है एमकेएम, ताकि इस नेशन बिल्डिंग में वो एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकें, और खवातीन का रोल रहा है और उसको और उजागर करने की जरूरत है। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब ये कहेगा कि तीसरा बड़ा इज्तिमा होगा एमकेएम के तहत, क्या खास बात होगी आज के इस जलसे में जो कि पहले शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ? सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि खवातीन का, प्योरली खवातीन का ये जलसा है। खवातीन का लाखों का इज्तिमा इंशाअल्लाह ताला ये होने जा रहा है, और खवातीन का इज्तिमा लाखों का, हजारों का भी जो है वो पार्टीज नहीं कर सकती। हम ये इंशाअल्लाह ताला लाखों का इज्तिमा करने जा रहे हैं। ये थे मुस्तफा कमाल एमकेएम के रहनुमा, जिनका ये कहना था कि लाखों की तादाद में यहाँ पर खवातीन जमा होंगी। इस लिहाज से भी आज ये जलसा खासा मुनफरिद है क्योंकि यहाँ पे आज मर्दों की कोई प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ आज ये औरतों का दिन है।